السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواہر المنطق کے سبق کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا سبق ہے چند بسیط اور مرکب کلیوں کا بیان۔ چند بسیط اور مرکب کلیوں کا بیان۔ بسیط اور مرکب کی تعریف آپ نے سبق نمبر 3 یا 4 میں پڑھ لیا ہوگا کہ بسیط کسے کہتے ہیں اور مرکب کسے کہتے ہیں۔ بسیط جس کے لیے جز نہ ہو، اور مرکب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے جز ہو۔ اب یہاں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سی کلیہ بسیط ہیں اور کون سی کلیاں مرکب ہیں۔ سوال جواب کے طور پر صاحب کتاب نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اگر آپ نے پیچھے ان سب سبق کو جو میں اسکرین پر شیئر کر رہا ہوں، جو آپ دیکھ رہے ہو، اس کو آپ نے سمجھا ہوگا تو آپ از خود یہ فیصلہ کر لیں گے کہ کون سی کلی بسیط ہے اور کون سی کلی مرکب ہے۔ پیارے دوستوں، اس سبق میں کلی کو مرکب اور بسیط کہنے کی ایک سب سے بڑی وجہ جو یہ ہے وہ یہ ہوگی کہ کلی کو ہم دیکھیں گے کہ کون سی کلی کو فی نفس ہی ذکر کیا جا رہا ہے اور کون سے کلی کے ساتھ اجزاء ہیں۔ بہت سی کلی ایسی ہیں کہ جن کے اجزاء کا ذکر نہیں، فی نفس اسی کلی کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی تو وہ کلی بسیط ہے۔ اور اگر ان کے اجزاء کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہو، یعنی اجزاء اجمالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شارٹ میں آپ سے پوچھنا چاہے کہ اس کو بتائیے کہ اسے کسے کہتے ہیں، تو آپ ان کے مختصر اور شارٹ اجزاء کو بتا دیجئے کہ یہ فلاں ہے۔ اور اگر کہیں اجزاء تفصیلی کیا ہے یا اجزاء ذہنیہ کیا ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں آنے والی ہیں اور آپ ان کو ملاحظہ کریں گے۔ فرماتے ہیں، سوال ہے کہ جوہر بسیط ہے یا مرکب؟ آپ نے جوہر کی تعریف پڑھی تھی کہ جوہر قائم بنفسہ کو کہتے ہیں۔ تو جوہر بسیط ہے یا مرکب؟ دراصل دوستوں بات یہ ہے کہ جوہر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جوہر فرد اور ایک ہے جوہر مطلق۔ جوہر فرد اس جوہر کو کہتے ہیں کہ جس جوہر کا کوئی مزید کوئی جز نہ ہو۔ یہ بات آپ جماعت رابعہ میں جا کر ہدایت الحکمت جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ بس ہم یہاں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم یہ بتا دیں کہ جوہر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جوہر فرد ہے اور ایک جوہر مطلق ہے۔ جوہر مطلق کی قسمیں ہوتی ہیں اور جوہر فرد کی کوئی قسم نہیں ہوتی ہے، کہ جوہر جو ہوتی ہے، جوہر فرد جو ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی اجزاء نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو بات چل رہی ہے، یہاں جوہر مطلق کی نہیں، جوہر فرد کی بات ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو سوال ہے کہ جوہر بسیط ہے یا مرکب؟ جواب دیا کہ جوہر بسیط ہے، اور فی نفس ہی جوہر کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ جوہر کسے کہتے ہیں؟ جو قائم بنفس ہی ہو۔ آپ کسی بھی جوہر کو لے لیجئے، چاہے جسم کو لے لیجئے، یہ کیا ہے؟ جسم، یہ بسیط ہے۔ تنہا جسم کے بارے میں اگر سوال ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ بسیط ہے۔ نفس ناطقہ، اگر تنہا اس کے بارے میں سوال ہو تو یہ کیا ہے؟ بسیط ہے۔ تو جوہر کیا ہے؟ بسیط ہے۔ سوال جسم بسیط ہے یا مرکب؟ جسم کیا ہے؟ بسیط ہے یا مرکب؟ تو آپ غور کریے، جسم کی تعریف آپ نے کیا پڑھی تھی کہ جسم کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ جسم کے اندر جوہر بھی ہوتا ہے، جسم کے اندر جوہر بھی ہوتا ہے، جسم کے اندر قابل عباد ثلاثہ بھی ہوتا ہے۔ جسم، جو بھی جسم ہے اس کے اندر کیا ہے؟ ہر جسم جوہر ہے، اور ہر جسم جوہر ہے اور جسم کے اندر جوہریہ، ہر جسم کے اندر جوہر ہے، یعنی وہ جسم جوہر بھی ہوتا ہے، قائم بنفسی بھی ہوتا ہے، اور ہر جسم کے اندر طول عرض عمق یعنی لمبائی چوڑائی گہرائی کے مادے بھی ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا اس صورت میں
कि जब इसके अंदर जौहर भी और काबिल आबाद सलासा भी है तो ऐसी सूरत में जिस्म क्या होगा, बसीत तो हो नहीं सकता, क्योंकि बसीत के लिए ज़रूरी कि उसके लिए सिर्फ एक ही जुज़ हो या वो किसी के लिए जुज़ ही ना हो। जिस्म मुरक्कब है और उसके अज्ज़ाए ज़हनिया, सवाल करें जिस्म मुरक्कब है और उसके अज्ज़ाए ज़हनिया जौहर और काबिल आबाद सलासा है। अज्ज़ाए ज़हनिया यानी वो अज्ज़ा जो हमारे अंदर जहन के अंदर महफूज हों, ठीक है। जिस्म मुरक्कब और उसके अज्ज़ाए ज़हनिया ये हैं, जौहर काबिल आबाद सलासा है। अब सवाल हो रहा, सवाल काबिल आबाद सलासा मुरक्कब है या बसीत। यहाँ पर फ़ी नफ्सिही काबिल आबाद सलासा के बारे में सवाल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब फ़ी नफ्सिही काबिल आबाद सलासा के बारे में सवाल हो तो काबिल आबाद सलासा तूल अर्ज़ उमुक को कहते हैं, और ये क्या है, ये बसीत है। तूल अर्ज़ उमुक वाले को कहते हैं, जिसके अंदर ये तीनों सलाहियत हो, तो ये क्या है, ये बसीत है। सवाल जिस्म नामी बसीत है या मुरक्कब। बर तकदीर सानी इसके अज्ज़ाए अक़लिया क्या हैं। जिस्म नामी बसीत है या मुरक्कब, बर तकदीर सानी इसके अज्ज़ाए अक़लिया क्या हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जिस्म नामी मुरक्कब है और इसके अज्ज़ाए ज़हनिया जौहर है, क्योंकि जिस्म नामी के अंदर जौहर भी होता है, काबिल आबाद सलासा भी होता है और नमूवत भी पाई जाती है। जैसे आप इंसान को ले लीजिए, इंसान जौहर भी है, काबिल आबाद सलासा भी है और नमूवत भी है। शजर को ले लीजिए, जौहर भी है, काबिल आबाद सलासा भी है और नमूवत भी है, इसके अंदर नामी यानी बढ़ने की सलाहियत भी है। तो कह रहे हैं जवाब जिसमें नामी मुरक्कब है और उसके अज्ज़ाए ज़हनिया जौहर काबिल आबाद सलासा और नामी है। सवाल हैवान मुरक्कब है या बसीत। बर तकदीर अव्वल इसके अज्ज़ाए बसीता क्या है। तो हैवान के बारे में सवाल हो रहा है ना, फ़ी नफ्सी हैवान के बारे में सवाल नहीं हो रहा है, फ़ी नफ्सी हैवान के बारे में सवाल नहीं हो रहा है कि लफ्ज़ हैवान ये मुरक्कब है या बसीत, ठीक है। यानी इसके अज्ज़ा के साथ बारे में सवाल हो रहा है कि अपने अज्ज़ा के एतबार से मुरक्कब है या बसीत। हैवान मुरक्कब है और इसके अज्ज़ाए बसीता ये हैं। हैवान के अंदर जौहर भी होता है, काबिल आबाद सलासा भी होता है, यानी जौहर भी है यानी कायम बिनफ्सिही है, और काबिल आबाद सलासा यानी कि इसके अंदर तूल अर्ज़ उमुक यानी लंबाई चौड़ाई गहराई भी है, दो जुज़ हो गए। नामी भी है, हसास यानी एहसास करने का मादा भी, और मुतहर्रिक बिल इरादा भी है यानी अपने हरकत अपने इख्तियार से हरकत करने वाला भी है। सवाल हैवान के अज्ज़ाए इजमाली क्या हैं। हैवान के अज्ज़ाए इजमाली क्या है। अज्ज़ाए इजमाली वही शॉर्ट में बता दो, हैवान किसे कहते हैं। अरे हैवान के अज्ज़ाए इजमाली जिसमें नामी है, हसास है, मुतहर्रिक बिल इरादा है। अज्ज़ाए तफसीली की अगर बात करें तो देखिए उसके अंदर कितना जौहर, काबिल आबाद सलासा, नामी, हसास, मुतहर्रिक बिल इरादा। लेकिन अज्ज़ाए इजमाली यानी इजमाली तौर पर आप बताइए कि हैवान किसे कहते हैं। अगर हैवान के अज्ज़ाए इजमाली क्या है, तो ये जिसमें नामी है, हसास है, मुतहर्रिक बिल इरादा है। सवाल नामी मुरक्कब है या बसीत। अब यहाँ सिर्फ नामी के बारे में सवाल हो रहा है, नामी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब सवाल सिर्फ नामी के बारे में होगा, फ़ी नफ्सिही उसी के बारे में सवाल हो रहा है, तो नामी क्या है, ये बसीत है, बसीत है। सवाल इंसान के अज्ज़ाए इजमाली क्या हैं। इंसान के अज्ज़ाए इजमाली हैवान है और नातिक है। इंसान के अज्ज़ाए इजमाली दो हैं, इजमाली दो हैं, हैवान और नातिक। सवाल इंसान के अज्ज़ाए बसीता कितने हैं। इंसान के अज्ज़ाए बसीता कितने हैं। जवाब इंसान के अज्ज़ाए बसीता 6 हैं। अज्ज़ाए बसीता 6 हैं, यानी इंसान के अंदर इतने अज्ज़ा पाए जाते हैं। जौहर है, काबिल आबाद सलासा है, नामी है, हसास है, मुतहर्रिक बिल इरादा है और नातिक है। जौहर यानी कि बज़ात ख़ुद कायम है इंसान, है ना। काबिल आबाद सलासा यानी इनके इसके अंदर तूल अर्ज़ उमुक है। नामी यानी ये बढ़ने की सलाहियत भी इसके अंदर है। हसास यानी महसूस करने की भी सलाहियत है। मुतहर्रिक बिल इरादा भी है यानी अपने आप से हरकत करने वाला भी है, और नातिक यानी बोलने वाला। तो ये इसके अज्ज़ाए बसीता हैं। सवाल फ़र्ज़ के अज्ज़ाए बसीता क्या हैं, कितने हैं। फ़र्ज़ के भी अज्ज़ाए बसीता 6 हैं। यही चीज़ें जौहर है, काबिल आबाद सलासा है। भाई जिस तरीके से इंसान के अंदर इतनी चीज़ें हैं, उसके अंदर इंसान के हैवान के फ़र्ज़ के अंदर भी इतनी चीज़ें पाई जाएंगी। जौहर है, काबिल आबाद सलासा है, नामी है, हसास है, मुतहर्रिक बिल इरादा है और वो साहिल है, हिनाने वाला है। सवाल हसास, मुतहर्रिक बिल इरादा, नातिक, साहिल, नाहिक, नाबिक, मुफ्तरिस, इन कुल्लियों में कौन बसीत है और कौन मुरक्कब है। हसास हर एक अलग अलग के बारे में सवाल हो रहा है। हसास, मुतहर्रिक बिल इरादा, नातिक, साहिल, नाहिक, नाबिह, मुफ्तरिस, इन कुल्लियों में बसीत कौन है, मुरक्कब। ये सब कुल्लियाँ बसीत है, इनमें कोई कुल्ली मुरक्कब नहीं है। हसास हो तो ये भी बसीत है, मुतहर्रिक बिल इरादा ये भी बसीत है, नातिक ये भी बसीत है, साहिल ये भी बसीत है, क्योंकि इन अज्ज़ा के बारे में फ़ी नफ्सी सवाल हो रहा है।
सवाल, नफ्स नातिका मुरक्कब है या बसीत? नफ्स नातिका मुरक्कब है। नफ्स नातिका यानी रूह मुरक्कब है या बसीत है? नफ्स नातिका मुरक्कब, इसके अज्जाए बसीता ये हैं, जौहर है और मुजर्रद अनिल बुअद है। आज मुजर्रद अनिल बुअद यानी कि ये लंबाई चौड़ाई और गहराई से क्या है, खाली है, मुदब्बिर बदन को कहते हैं। ठीक है, नफ्स नातिका मुरक्कब, इसके अज्जाए बसीता ये हैं। मेरे दोस्तों, अगर ये आपको सबक समझ में ना आया हो तो ये आप यहाँ पर गौर कर लीजिएगा। ये जो आपने पढ़ा था ना, ये देखिए यहाँ पर, इस पर आप गौर कर लीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला बात वाज़ेह हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हैवान के अज्जा बताए हैं, जिसमें नामी, हसास, मुतहर्रिक, इरादा को कहते हैं। इंसान हैवान को, नातिक को कहते हैं, जैसे ज़ैद, खालिद वगैरह, है ना। हसास को होते, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जिक्र की गई हैं। ठीक है। सवाल, अब यहाँ से कह रहे हैं कि उन चंद कुल्लियों का बयान जिनके अफराद की हकीकतों में इत्तिफाक है, यानी उन चंद कुल्लियों को बयान करेंगे कि जो कुल्लियाँ अपने अफराद, जिनके अफराद की हकीकतें क्या हैं, मुत्तफ़िक़ हैं, एक हैं। सवाल, ज़ैद और अमर, बकर, खालिद, अहमद वग़ैरह तमाम अफराद इंसान की हकीकत क्या है? ज़ैद, अमर, बकर, खालिद, अमा और अहमद वग़ैरह तमाम अफराद इंसानी, ज़ैद हो चाहे बकर हो चाहे अमर हो चाहे खालिद हो, ये तमाम के तमाम इंसान के अफराद हैं। तो जाहिर सी बात है, इनकी हकीकत पूछ रहे हैं कि ज़ैद, बकर, खालिद वग़ैरह ये अफराद इंसान हैं, इनकी हकीकत क्या है? कह रहे हैं जवाब, इंसान के हर फ़र्द की हकीकत हैवान नातिक है, क्योंकि इंसान ही की हकीकत क्या है, हैवान नातिक है। हकीकत मतलब ये है कि इंसान इन्हीं से, यानी हैवान और नातिक से मिलकर बना हुआ है, हैवान और नातिक से। तो जाहिर सी बात है, जब इंसान की हकीकत हैवान और नातिक होगी तो उसके जो अफराद हैं उनकी भी हकीकत, अब उनके जो अफराद हैं, इंसान के अफराद, दुनिया के तमाम इंसान, ज़ैद, बकर, खालिद, महमूद, अहमद, है ना, और ये सारे के सारे जितने भी अफराद हैं, तो जो हकीकत इंसान की होगी वही उसके अफराद की होगी। क्योंकि इंसान की हकीकत क्या है, हैवान और नातिक। हकीकत से मुराद ये है कि हैवानियत और नुतकियत, यानी कि हैवान यानी जान और नुत्क यानी बोलना, ये दोनों इंसान की हकीकत यानी उसके अंदर दाखिल है, ये कभी इंसान से जुदा नहीं हो सकते हैं। तो दुनिया के तमाम इंसान हो, कोई भी इंसान हो, उनके अंदर हैवानियत भी है, यानी हैवान यानी वो जानदार भी है, और नातिक यानी नुत्कियत भी है, यानी उसके बोलने की क़ुव्वत भी है। सवाल, ज़ैद, अमर, बकर, खालिद, अहमद वगैरह तमाम अफराद इंसान की हकीकत क्या है? जवाब, इंसान के हर फ़र्द की हकीकत हैवान नातिक है। फिर सवाल, ये घोड़ा, वो घोड़ा वगैरह तमाम अफराद फ़र्ज की हकीकत क्या है? तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ज़ैद, बकर, खालिद वगैरह की हकीकत ये अफराद इंसान की होने की वजह से जो है हैवान नातिक है, इसी तरीके से ज़ैद, घोड़ा, और ये घोड़ा, वो घोड़ा, तो घोड़े की हकीकत भी क्या है, हैवान साहिल है, हैवान साहिल है। तो चाहे ये घोड़ा हो चाहे वो घोड़ा, दुनिया के तमाम घोड़े की हकीकत भी, जो एक घोड़े की हकीकत है वही दुनिया के तमाम घोड़े की हकीकत है, हैवान साहिल। वही कह रहे, जवाब, फ़र्ज के तमाम अफराद की हकीकत हैवान साहिल है। हकीकत समझ रहे हो ना, हकीकत किसे कहते हैं, यानी जो उसके ज़ात के अंदर दाखिल हो, हैवान साहिल यानी हिनहिनाने वाला घोड़ा, हिनहिनाने वाला जानवर। सवाल, असद, कल्ब, हिमार के तमाम अफराद की हकीकत क्या है? असद, कल्ब, यहाँ अब मुख्तलिफ हो गए, असद यानी शेर, कल्ब यानी कुत्ता, हिमार यानी गधा के तमाम अफराद की हकीकत क्या है? तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम अफराद की हकीकत तो एक है नहीं। सवाल, जवाब करें, असद के तमाम अफराद की हकीकत हैवान मुफ्तरिस है, यानी ये फाड़ने वाला जानवर होता है। इसके हकीकत में ये दाखिल है कि ये फाड़ खाता है, चीर देता है, फाड़ देता है। ठीक है, असद के तमाम अफराद की हकीकत हैवान मुफ्तरिस है। और कल्ब के तमाम अफराद की हकीकत हैवान नाबे है, यानी कल्ब के अंदर भौंकने की ताकत होती है, यानी भौंकने वाला जानवर होता है कुत्ता, तो इसको हैवान नाबे कहेंगे, यानी इसकी हकीकत हैवान नाबे है। और हिमार के जमी अफराद की हकीकत हैवान नाहिक है, यानी रेंगने की क़ुव्वत रखने वाला। तो ये तमाम तरीके से, ये इस तरीके से जो है इसकी तमाम किस्में हो गई। फिर फरमा रहे सवाल, जौहर के अफराद की हाँ, ये यहाँ हो गया। चलिए, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इंशाअल्लाह रहमान। यहाँ उन चंद कुल्लियों का बयान जिसके अफराद की हकीकत मुख्तलिफ है। तो यहाँ आज उन कुल्लियों का बयान हुआ है कि जिनके अफराद की हकीकतें मुत्तफ़िक़ हैं। ठीक है, ज़ैद, बकर, खालिद वगैरह ये इंसान के अफराद हैं, तो इनकी तमाम, ये ऐसी कुल्ली है कि इसकी तमाम अफराद की हकीकत मुत्तफ़िक़ हैं। अगर आप ये समझ लेंगे तो कुल्लियात खमसा को बहुत आसानी के साथ समझेंगे। फिर है कि ये घोड़ा वगैरह, तो इन तमाम की अफराद की हकीकत क्या है? ये भी क्या है? मुत्तफ़िक़ हैं। ठीक है, फ़र्ज और तमाम अफराद की हकीकत। और फिर असद, कल्ब, हिमार, हर एक को अलग अलग के तौर पर पूछा। असद के बारे में पूछा, कल्ब के बारे में पूछा है, और हिमार के बारे में पूछा। तो इनकी हकीकतें अलग अलग हैं, तो इनकी हकीकत बता दिया। ठीक है, चलो इंशाअल्लाह ताला जो बात समझ में ना आई होगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। हौसला अफजाई के लिए आप लोग
سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک کریے، شیئر کریے، اور ایک چھوٹا سا پیارا سا کمنٹ ماشاءاللہ کے طور پر لکھ دیا کریں، تاکہ قاری یعنی پڑھانے والے اور سیکھنے والے جو بھی آئیں ان کا بھی حوصلہ افزائی ہوتا رہے۔